Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are safe and healthy at your homes. Here is your teacher Sabah Akhtar, lecturer of biology, and I am going to represent this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our previous chapter is continued, which is respiration, but the topic which we are going to study today are mechanism of breathing, respiratory volumes and control of breathing. So before starting our lecture, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define the term breathing, describe mechanism of breathing, distinguish between inspiration and expiration, and learn about respiratory volumes and control of breathing as well. So come towards our topic, mechanism of breathing. ब्रीदिंग टर्म है क्या डेफिनेशन है इसकी? द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज और कॉल्ड ब्रीदिंग. देखिए, फिजिकल मूवमेंट्स जिन के जरिए हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग. मीन्स इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फाइन. But dear students, lungs themselves neither drawn in air or nor push it out. जो lungs होते हैं वो बजाते खुद ना ही air को अंदर ले सकते हैं और ना ही इसको push out कर सकते हैं, but with the help of few structures they can perform this function. अब वो structures कौन सी हैं जिनके थ्रू ये function ये वाला perform कर सकते हैं lungs? These are the diaphragm, abdominal muscles and intercostal muscles. So diaphragm, abdominal muscles and intercostal muscles can accomplish the expansion and contraction of the lungs. मतलब इन structures के थ्रू lungs जो हैं वो air को inhale भी कर सकते हैं और exhale भी कर सकते हैं. What is diaphragm? Diaphragm क्या है? देखिए, look at this diagram. ये diaphragm है. Diaphragm एक muscular structure है, dome shape का है ये, ठीक है. Diaphragm is a large dome of skeletal muscle that separate the thoracic cavity from the abdominal cavity. Diaphragm एक skeletal muscles का एक structure है जो क्या करता है, thoracic cavity को abdominal cavity से separate करता है. Thoracic cavity means chest cavity को, ये ऊपर वाले part को, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, this is the thoracic cavity. और देखें बीच में ये diaphragm नजर आ रहा है आपको, तो ये जो नीचे वाला यहाँ से part start हो जाएगा, this is abdominal cavity, ठीक है. तो ये chest cavity को या हम कह सकते हैं कि थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी से. फाइन. तो डायफ्राम का क्या फंक्शन है? ये सिंपल इसका मतलब क्या है डायफ्राम का? डायफ्राम का मतलब है पार्टीशन, सेपरेशन, ठीक है. डूम शेप्ड होता है, देखिए बिल्कुल आपको नजर आ रहा है. डूम मीन्स गुंबद की तरह होता है. बेस जो होता है इसका थोड़ा सा यहाँ से वाइड होता है और ऊपर से ये थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक है. फाइन. नाउ The two pairs of intercostal muscles are present between the each pair of ribs. देखें हर यहाँ पे आपको ये इस डायग्राम में नजर आ रहा है. These are the ribs, ठीक है. And in thoracic cavity there are 12 pairs of ribs are present. 12 जो pairs होते हैं ribs के, या हम कह सकते हैं कि टोटल 24 ribs जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं thoracic cavity में. और इन ribs के बीच में क्या होते हैं? मसल्स होते हैं, intercostal muscles होते हैं. इनको हम कहते हैं intercostal muscles. We have studied in our metric class as well कि जो intercostal muscles होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं internal intercostal muscles और एक होते हैं external intercostal muscles. इन दोनों के अलावा एक थर्ड टाइप भी होती है which is known as innermost intercostal muscles, ठीक है. तो ये जो muscles होते हैं ये diagonally रन करते हैं, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे होते हैं. ये अगर इंटरनल कोस्टल मसल्स की डायरेक्शन देखिए, आपको नजर आ रही है छोटी छोटी सी ये वाली स्ट्रिप्स, अगर इनकी डायरेक्शन इस तरह की है तो जो एक्सटर्नल ये इंटरकोस्टल मसल्स होंगे दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. देखिए इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की है, ठीक है. तो और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन रिब्स के दरमियान में ये प्रेजेंट होते हैं, इन बिटवीन दी रिब्स. The rib muscles run diagonally but in opposite direction in the two sets of muscles. मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये diagonally रन करते हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं. तो ये जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है ना हमारा, ये जो गैसेस एक्सचेंज का है, ये अकम्प्लिश्ड कौन करता है? यही इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम की हेल्प से और विद द हेल्प ऑफ दीज रिब्स ऑल्सो, ठीक है. ये फंक्शन जो हमारा परफॉर्म होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फाइन. नाउ the breathing can take place in two phases which are known as inspiration and expiration. मतलब इसके दो phases हैं breathing के, inhalation या exhalation, और हम इसको inspiration और expiration भी कह सकते हैं. So what is inhalation?
The intercostal muscles contract, sending the rib cage upward and outward. The diaphragm contract and move downward. The volume inside of the chest cavity increase. The pressure inside the chest cavity decrease. Air enter the lungs to equalize the pressure. So actually, what is the meaning of a term inspiration or the inhalation? इट इज टेकिंग इन ऑफ एयर, एयर को अंदर लेकर जाना जो है वो क्या कहलाता है, इनहेलेशन कहलाता है. एंड इट इज द एक्टिव फेज ऑफ ब्रीदिंग, ये जो है ब्रीदिंग का एक्टिव फेज है. फाइन. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन contraction of the diaphragm cause its dome shape to flatten, और we can say that less dome shape जो इसका diaphragm होता है वो हो जाता है, ठीक है, या flat हो जाता है या less dome shaped हो जाता है. बट जो internal जो इसके intercostal muscles होते हैं उनकी contraction होती है. दोनों intercostal muscles contract नहीं होते. I have told you in my previous slide कि दो तरह के internal costal muscles होते हैं. Number one is the inner और number two is the external. ठीक है ना, inner भी होते हैं और एक्सटर्नल भी इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, या इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं. तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वाइल जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, रिब केज मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. ये जो रिब केज होता है ये अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है. फाइन. बोथ दीज इवेंट्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनर स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी एज वेल. ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है या जो स्पेस होता है ना थोरेसिक कैविटी का, वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है. क्योंकि रिब्स जब बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करेंगी तो देखें यहाँ पर स्पेस ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके देखें. इनहेल करें, जरा एयर अंदर हवा को लेकर जाएं तो देखिए आप फील करेंगे कि आपके रिब्स जो हैं वो बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर रही हैं. उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पेस होगा यहाँ पर चेस्ट कैविटी में वो इंक्रीज हो जाएगा. फाइन. बट कॉन्सिक्वेंटली द प्रेशर इन द थोरेसिक कैविटी एंड हैंस इन द लंग्स विल बी रिड्यूस्ड. ठीक है, और प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा. एटमॉस्फेरिक जो हमारा प्रेशर होगा उससे भी कम हो जाएगा ये. फाइन. देन एयर एंटर दी लंग्स टू इक्वलाइज दी प्रेशर. फिर जो एयर होगी वो जल्दी से बाहर से अंदर की तरफ आएगी ताकि इस प्रेशर को वो इक्वलाइज कर सके. फाइन. एंड एयर देयरफॉर एंटर दी लंग्स एंड एल्वेलाई बिकम इन्फ्लेटेड. और जो एयर होगी वो बाहर से अंदर आएगी और जो एल्वेलाई होंगे, जो लंग्स के एल्वेलाई होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में समझाया था, तो वो जो एल्वेलाई होते हैं वो हवा से भर जाते हैं. गॉट इट. नाउ व्हाट इज एक्सेलेशन. एक्सेलेशन क्या है हमारे पास, एक्सेलेशन वर्ड की मीनिंग क्या है. एक्सेलेशन देखें मीन्स टू एक्सेल, टू रिमूव. तो रिमूवल ऑफ द एयर आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एक्सेलेशन और एक्सपायरेशन. हवा को बाहर निकालना लंग्स में से एक्सेलेशन कहलाता है या एक्सपायरेशन कहलाता है. फाइन. इसके पॉइंट्स क्या हैं. द इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स सेंडिंग द रिब केज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड. द वॉल्यूम इनसाइड ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज. द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी इंक्रीज. एयर एग्जिट द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर. देखिए इट इज द पैसिव फेज ऑफ ब्रीदिंग. ये जो एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन है ना, ये क्या है हमारे पास, पैसिव फेज है. वेयर एज इनहेलेशन इज द एक्टिव फेज ऑफ ब्रीदिंग. इनहेलेशन जो है वो एक्टिव फेज है, लेकिन एक्सेलेशन हमारे पास क्या है, पैसिव फेज है. ठीक है, ब्रीदिंग का. ड्यूरिंग एक्सपायरेशन या फिर एक्सेलेशन हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम कॉजेज इट टू बिकम मोर डूम shape, whereas the relaxation of the external intercostal muscles and contraction of the internal intercostal muscles cause the rib cage to move downward and backward. इसमें क्या होता है, इंटरनल जो इंटरकोस्टल जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, लेकिन दो टाइप्स हैं इनकी इंटरकोस्टल मसल्स की, तो वो दोनों रिलैक्स नहीं होते. ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है इनहेलेशन के. इसमें क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो वापस अपनी शेप में आ जाता है, वापस अपनी डूम शेप ले लेता है. ठीक है, रिलैक्स हो जाता है. और जो इसमें जो मसल्स होते हैं, जो आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं. उनकी वजह से क्या होता है, जो आपका रिब केज है वो वापस डाउनवर्ड मूव करता है और वापस बैकवर्ड मूव करता है. जब इस तरह होता है तो फिर द स्पेस बिटवीन दी थोरेसिक कैविटी विल बी डिक्रीज्ड. जो स्पेस होगी यहाँ पर
या जो वॉल्यूम होगा चेस्ट कैविटी में, जो स्पेस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। आप थोड़ी सी ये करें, एक्सरसाइज जरा सी करें, देखें, एक्सेल करें एयर, तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी रिब्स जो है वो बैकवर्ड मूव कर रही हैं या अंदर की तरफ मूव कर रही हैं। और इसके दौरान क्या होगा, फिर जो स्पेस होगा इसमें चेस्ट कैविटी में या थोरेसिक कैविटी में वो डिक्रीज हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी इंक्रीज, जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और जो एयर होगी वो लंग्स से बाहर निकलेगी ताकि इस प्रेशर को वो इक्वलाइज कर सके। गॉट इट? Now let's come toward respiratory volumes. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी वॉल्यूम और लंग वॉल्यूम, ये तीनों जो है ये एक ही मतलब सिनोनिम है तीनों, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम और लंग वॉल्यूम, हम ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। तो ये है क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड, एक्सहेल्ड एंड स्टोर्ड विद इन द लंग्स एट एनी गिवन टाइम। देखें, किसी भी एक टाइम पर जब हम एयर को इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं या वो हमारे लंग्स के अंदर जब स्टोर होती है थोड़ी बहुत अमाउंट में, तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, पल्मोनरी वॉल्यूम्स और लंग वॉल्यूम, ठीक है। इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स एट अ गिवन टाइम ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी साइकिल। लंग्स कैपेसिटीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम समेशन ऑफ डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स। देखें, ये डिपेंडेंट होता है डिफरेंट सिचुएशंस पे। इसमें हम ज्यादा एयर को भी इनहेल कर सकते हैं, ज्यादा डीप जब हम ब्रेथ लेते हैं, जब हम गहरी सी सांस लेते हैं तो उस दौरान हम लोग ज्यादा एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो गैसेस जो होती हैं, इस गैस का जो वॉल्यूम होता है लंग्स के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। किसी भी एक गिवन टाइम पर, किसी भी एक हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान किसी भी एक गिवन टाइम पर इन गैसेस का जो वॉल्यूम होता है, कितना हमारे लंग्स के अंदर मौजूद है, हम इसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम कह सकते हैं, ठीक है। एंड दीज वॉल्यूम्स टेंड टू वेरी डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन, जेंडर, एज एंड इन सर्टन रेस्पिरेटरी डिजीजेस। देखें, ये चेंज हो सकता है जेंडर के लिहाज से, मेल फीमेल में, एज के लिहाज से, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, उनमें चेंज हो सकता है, और रेस्पिरेटरी डिजीजेस के हिसाब से भी ये चेंज हो सकता है। मतलब नॉर्मल इंसान में और जो पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अस्थमा है किसी को या कोई भी और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो उन लोगों में भी ये थोड़ा सा वेरी करता है, थोड़ा सा ये चेंज होता है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है, The tidal volume is 500 ml, same amount leaves the lungs during exhalation। तो जो हमारा नॉर्मल ये जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 500 ml होता है, और मतलब इतनी ही अमाउंट में हम लोग एयर को इनहेल करते हैं और इसी अमाउंट में हम उसको एक्सहेल भी कर रहे होते हैं। The amount of extra air inhaled above tidal volume during a deep breath can as high as 3000 ml। तो ये जो हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट इनहेल कर रहे होते हैं ना एयर का, मतलब अगर हम लोग गहरी सांस लेते हैं तो वो हम मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हैं, तकरीबन 3000 ml हम लोग इनहेल कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि जब हम चेकअप के लिए जाते हैं, हमें फीवर है या कुछ भी और थोड़ा सा कोई मसला हो गया, तो डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आप गहरा सांस लें या लंबा सांस लें। तो हम लोग गहरा सा सांस या लंबा सा सांस लेते हैं ना, तो हम उस दौरान मतलब मैक्सिमम कितनी एयर इनहेल कर सकते हैं, 3000 ml हम लोग इनहेल कर सकते हैं। फाइन, देखें यहाँ पर ये जो है ना आपका, ये टाइडल वॉल्यूम है, मतलब कंप्लीट कितनी एयर हमने इनहेल की और कितनी एयर हमने एक्सहेल की। तो हम लोग कितनी कर सकते हैं, 500 ml इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। 500 ml हम लोग इनहेल भी करते हैं और इन दी सेम अमाउंट हम लोग एक्सहेल भी करते हैं। बट जब हम डीप ब्रेथ करते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो उस दौरान हम लोग तकरीबन 3000 ml इनहेल कर सकते हैं। फाइन, इट कैन बी एज हाई एज 3000 ml। Got it? Now come towards the control of breathing, के इस ब्रीदिंग को कंट्रोल कौन करता है ना, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है, कोई ऐसा सेंटर है हमारे पूरे बॉडी में जो इसको कंट्रोल करता है ब्रीदिंग के? तो इसका आंसर है यस है। ब्रीदिंग इज एन ऑटोमेटिक एंड रिदमिक एक्ट प्रोड्यूस्ड बाय नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन द हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, पोन्स है, मेड्यूला है और सेरिबेलम भी है, ठीक है। तो जो ब्रीदिंग है ये ऑटोमेटिक और रिदमिक एक एक्ट है जो कुछ न्यूरॉन्स की मदद से, जो हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट में, हिंड ब्रेन में मौजूद होते हैं, उनके कुछ एक्ट की वजह से ये कंट्रोल होती है ब्रीदिंग। अब इंस्पायरेशन कौन कंट्रोल करता है और एक्सपायरेशन कौन कंट्रोल करता है?
The ventral lower portion of the breathing center act to increase the rate and depth of the inspiration called inspiratory center. तो इंस्पायरेटरी सेंटर कौन सा है? इंस्पायरेशन या इनहेलेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक वेंट्रल पोर्शन, जो ब्रेन हिंड ब्रेन का जो वेंट्रल पोर्शन है, मेड्यूला या पोन्स का जो वेंट्रल पोर्शन है, वो किसको कंट्रोल कर रहा है? वो इंस्पायरेशन या इनहेलेशन को कंट्रोल कर रहा है. हम कितनी गहरी सांस ले रहे हैं, कितनी डेप्थ में हम लोग सांस ले रहे हैं, क्या रेट है उसका, कितनी इंक्रीज करनी है, इस सब को कौन कंट्रोल करता है? इंस्पायरेटरी सेंटर. वाइल द डोर्सल टॉप और द लैटरल पोर्शन, मतलब साइड वाला जो पोर्शन होता है, इनहिबिट इंस्पायरेशन एंड स्टिमुलेट एक्सपायरेशन. ये क्या करता है? इंस्पायरेशन को रोक देता है और किसको प्रोमोट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है? एक्सपायरेशन को या एक्सेलेशन को स्टिमुलेट करता है. और इस रीजन को हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी सेंटर. ये दोनों प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इंस्पायरेटरी सेंटर एंड एक्सपायरेटरी सेंटर, बोथ दीज सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दी हिंड ब्रेन. ये हमारे हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन को कंट्रोल करते हैं. Through the cerebral cortex, it is possible to consciously or unconsciously increase or decrease the rate and depth of the respiratory movement. कहते हैं हमारा जो cerebral cortex है, ये भी brain का एक part है. तो ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये कुछ हमारी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारी इस ब्रीथ को, ये जो हम लोग सांस लेते हैं इस ब्रेथ को, इसकी डेप्थ को कंट्रोल कर सकता है कि कितनी हम लोगों ने डीप में सांस लेनी है या कितना हमने इंक्रीज करना है इसको, कितना डिक्रीज करना है. तो इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कुछ टाइम के लिए ये कंट्रोल कर सकता है. फाइन. इमोशंस एक्टिंग थ्रू द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन कैन एक्ट और कैन ऑल्सो अफेक्ट दी रेस्पिरेटरी सेंटर. कहते हैं जो हमारे इमोशंस हैं, जो एक्ट कहाँ करते हैं, किसके थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं, जिनको कौन कंट्रोल करता है? लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है. ये लिम्बिक सिस्टम हम लोग अगले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. आई विल टेल यू इंशाल्लाह. तो ये जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये भी हमारी रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं. हमारे जो हम लोग सांस लेते हैं ना, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, तो ये भी इसको कंट्रोल करते हैं, अफेक्ट करते हैं. सॉरी, ठीक है. इमोशंस जो हैं, जो हमारे जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर पर अफेक्ट करते हैं. इट इज हियर. ठीक है. देखें, पोन्स एंड मेड्यूला पार्ट्स ऑफ द हिंड ब्रेन आर दी, हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग सेंटर्स ऑफ दी या रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं. तो कैसे कंट्रोल करते हैं? मसल कंट्रैक्ट फास्टर टू स्पीड अप रेट ऑफ ब्रीदिंग व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई. जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, बढ़ जाती है, तो मसल्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रेट ऑफ ब्रीदिंग को इंक्रीज करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करें और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सहेल कर सकें. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोअर टू स्लो रेट ऑफ ब्रीदिंग व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज लो. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, लो होगी, तो ये जो मसल्स हैं हमारे, ये आराम आराम से कॉन्ट्रैक्ट होंगे. मतलब इनका जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा वो स्लो हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑलरेडी लो है, तो इतनी ज्यादा फास्टर मूवमेंट की नीड नहीं है. फाइन. नाउ हियर इज अ शॉर्ट वीडियो क्लिप फॉर यू. इस वीडियो क्लिप को आप देखें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हमने आज पढ़े हैं ये थोड़े से और डिटेल में क्लियर हो जाएं. फाइन. सो हियर योर वीडियो इज. Breathing is mostly an involuntary automatic process. Because its major function is to supply the body with oxygen and remove carbon dioxide, the rate and depth of breathing is generally regulated by carbon dioxide status or the need for oxygen. For example, breathing automatically accelerates with physical exercise when the body's need for oxygen is increased. Basically, various receptors in the body feed information about its metabolic state to the respiratory center in the brainstem, which responds by changing the firing pattern of inspiratory and expiratory neurons. Inspiratory neurons fire during inspiration, while expiratory neurons only fire during deep expiration, since quiet expiration is a passive process. The fibers of these neurons descend to the cervical and thoracic spine, where they synapse with motor neurons. Motor neurons then travel in several nerves to respiratory muscles, changing the way these muscles contract, adjusting thereby the rate and depth of breathing to suit the body's needs. Of most importance are phrenic nerves, which control the diaphragm, and intercostal nerves, which innervate intercostal muscles. While the functional anatomy of human respiratory center is complex and not entirely clear, the current consensus
is that the primary center is composed of several areas in the medulla. The dorsal respiratory group, DRG, mainly associated with inspiration, the ventral respiratory group, VRG, mostly concerned with expiration, and the pre-Botzinger complex, possibly coupled with two other oscillators, thought to be the intrinsic rhythm generator, similar to the pacemaker in the heart. The medullary areas also communicate with two other areas in the pons to fine-tune the respiration control. The pneumotaxic center, which seems to inhibit inspiration, while the apneustic center stimulates it. The most important factor regulating breathing rate is the concentration of carbon dioxide. Changes in carbon dioxide leads to changes in pH, and these are detected by chemoreceptors. Central chemoreceptors located on the surface of the medulla monitor pH changes in the cerebrospinal fluid, while peripheral chemoreceptors found in the aortic and carotid bodies respond to fluctuations in pH, carbon dioxide, as well as oxygen levels in the blood. Peripheral receptors transmit signals to the respiratory center via the vagus and glossopharyngeal nerves. An increase in carbon dioxide, such as during exercise, causes a decrease in pH, which is sensed by central or arterial chemoreceptors and leads to deeper, faster breathing. More carbon dioxide is exhaled, and blood pH returns to normal. The respiratory center also receives input from various mechanoreceptors in the lungs, which transmit information about the mechanical status of the lungs via the vagus nerve. For example, pulmonary stretch receptors present in smooth muscle of the airways are activated when the lungs are excessively inflated and trigger the inflation reflex, which stops inspiration and prolongs expiration. Other receptors respond to inhaled irritants and are responsible for defensive respiratory reflexes, such as bronchoconstriction or coughing. The limbic system and hypothalamus also send information to the respiratory center and allow pain and emotional state to affect breathing. For example, pain or strong emotion may induce gasping, while anxiety may cause uncontrollable hyperventilation. While breathing is mostly involuntary, some degree of voluntary control is possible, for example during singing, playing wind instruments, or holding breath underwater. In this case, the control originates from the primary motor cortex, which sends signals directly to the spinal cord, bypassing the respiratory center in the brainstem. There are limits, however, to the extent one can control their breath, even though it's possible to increase these limits with training. So I hope you have enjoyed the video and cleared your concepts as well. आपको सारे concepts जो हैं जो आज हमने पढ़े हैं वो clear हो गए होंगे ये video देखने के बाद. But अगर आपको अभी भी कोई difficulty है इसमें, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, you may ask in comment section. Fine. Now come towards the review questions. We will discuss review questions of previous lecture and today's lecture as well. तो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे हम क्या क्या है. आपने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स एंड देन सेंड टू मी ऑन माय ईमेल एड्रेस विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन माय लास्ट स्लाइड. फाइन. आपने ये सारे रिव्यू क्वेश्चंस जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, इन सारे रिव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं अपनी नोटबुक्स में और मुझे सेंड करने हैं मेरी ईमेल आईडी पर जो मैं आपको अभी लास्ट स्लाइड में देने लगी हूँ. So question number 1 is what is respiratory surface? Write the properties of respiratory surface. What organ constitute the respiratory system? How nose and nasal cavity function in filtering the incoming air? What is the role of pharynx in human respiration? Describe the structure and function of human larynx. Describe the structure and function of alveoli. Describe the structure and function of pleura. देखें यहाँ तक जो क्वेश्चन है we have studied in our previous lecture. We have cleared all these concepts in our previous lecture. तो आपने इन सब के आंसर भी देने हैं, ठीक है. और जो हमने आज पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है how the contraction and relaxation of ह्यूमन लंग टेक प्लेस. ह्यूमन जो लंग्स हैं उनमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस तरह से होती है. व्हाट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमने आज क्लियर किए हैं. फाइन. जो ऊपर हमने क्वेश्चंस पढ़े ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हमने आज डिटेल में इन कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया है. नाउ कम टूवर्ड्स द एक्सटेंसिव क्वेश्चंस.
ये जो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ बिट डिटेल, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको लिटिल बिट डिटेल में इसका आंसर आपने देना है, बिकॉज दीज आर दी एक्सटेंसिव क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ट्रेकिया इन डिटेल. क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स. एंड क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. तो ये वाले जो सारे क्वेश्चंस हैं आपने इनको डिटेल में आंसर देना है. एक और क्वेश्चन है हाउ द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग टेक प्लेस. हम ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी जो सेंटर हमने पढ़ा ब्रेन में, इन ब्रेन में, उसके बारे में लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत डिटेल में हम ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं. यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस and send me on this email address. My email address is sabaakhtar336@gmail.com, sabaakhtar336@gmail.com, ठीक है. इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें एंड देन मुझे इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कीजिए. फाइन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल, एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.